हाय गाइस, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ चाय टाइम केसेस विद संकेत जैन। आज के सेशन में हम देखेंगे वैल्यू चेन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और सेगमेंटेशन एनालिसिस का मिक्स किया हुआ एक केस जो इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी डाइजेस्ट में निकाला था। एंड दिस केस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द केसेस दैट वी हैव सीन, तो बहुत अच्छे से इसे देखना होगा। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट आया था, सो आई सिलेक्टेड दिस केस विच इज अ वेरी नाइस केस टू लुक एट। तो हम लोग इसे देखेंगे आज के एपिसोड के अंदर। बट बिफोर वी बिगिन विद द डिस्कशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी है। सबसे पहला तो ये कि इफ यू आर लाइकिंग द सीरीज इन टोटलिटी, अगर आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं, let the YouTube algorithm know by hitting the like button. Also, if you want me to continue this series further on, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला केस आप कौन से टॉपिक से चाहते हैं। मेंशन द टॉपिक, आई विल सिलेक्ट अ गुड केस फ्रॉम दैट टॉपिक एंड कम हियर एंड डिस्कस इट विथ यू। इससे जो सबसे ज्यादा मुझे फायदा लगता है वो ये है कि हम चाय के साथ में डिस्कस करते हैं, तो ऐसा कुछ प्रोडक्टिव टाइम लूज नहीं कर रहे, लेजर टाइम को प्रोडक्टिव बना रहे हैं। एंड दिस इज बीइंग डन इन अ फन मैनर, 15 to 20 मिनट्स में कवर अप हो जाता है, तो प्रेशर भी हमारा हटते जाता है हर एक केस से। And third thing which I wanted to say is that if you are interested in knowing more about the book and like the book, तो मैं आपको बता दूं कि this book is called Scope View Charts and this book is designed by me. And if you are interested in knowing more about the book, you can contact me or check it out on our website www.sejeet.com. Make sure to hit the like button and also subscribe to the channel for further notifications. Let's begin with the discussion now. Flash Fabric and Clothing FFC is manufacturer of clothing fabrics to be made up into dresses and suits. So manufacture करते हैं ये clothing fabrics. FFC established long ago back and presently enjoys the reputation as producer of quality fabric. FFC producing fabrics from high quality synthetic yarns with all standard features with which other fabric manufacturer offers. तो standard features है, unique product नहीं है. Designs of fabric are old fashioned, traditional in nature as FFC was established long ago. Management team at FFC shown believe in integration, vertical and horizontal, and diversification, product range or market reach as tool of risk reduction and value enhancement. Profit too. FFC opts for unorganic forward integration to gain control over value chain. And how do they do it? So they do it by acquiring Lamode Designer Clothing LDC. LDC is operating in designing and weaving of fabric into fashion wares. LDC is targeting the customers who are in age group of 40 to 60 years and belongs to the price sensitive income group. FFC in this way is able to reach to end consumer through retailers by manufacturing cloth themselves. तो ये fabric manufacture कर रहे थे. And LDC has been always been into designing and मैन्युफैक्चरिंग. तो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको सेल करते हैं. सो व्हाट देव डन इज देव अक्वायर्ड लामोद, ताकि अब फैब्रिक हम बना रहे हैं और उसके बाद फिर हम ही मैन्युफैक्चर करेंगे क्लॉथ को और फिर रिटेलर्स के थ्रू सेल कर देंगे. बाय डूइंग दिस व्हाट देयर इंटेंशन इज कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आ जाए वैल्यू चेन के ऊपर, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि शायद प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, प्राइस का थोड़ा सा मैनेजमेंट है वो हाथ में आ जाएगा वैसे. So FFC in this way is able to reach to end consumer through retailers by manufacturing cloth themselves. Acquisition of LDC by FFC remains largely successful as it results in relative high increase in sales and profits both. Problem point. But the sale and profit are not growing at same old rate now. Top and bottom line witness this slowdown, which may be due to exhaust of synergy benefits. थोड़े टाइम अच्छा चला, उसके बाद में synergy benefits
खत्म होते हुए दिखाई दिए. Retail stores through which FFC sold its material also find it difficult to make reasonable amount of sale. FFC starts exploring new retailers, but due to presence of large number of suppliers of cloth, of manufactured cloth, buying power of retailers is high. Resultantly, FFC has to rest at unacceptable low margins. Alright, ये तो होना ही था. ज़्यादा से ज़्यादा suppliers अगर available है तो buying power of buyer अपने आप बढ़ जाती है. Down the line, FFC is considering of acquisition of one of cloth retail chain named Vastralay in order to deliver fabrics to the customers directly and eliminate retailers in order to boost its profit margins. Alright, makes sense. और वैल्यू चेन के अंदर बढ़ रहे हैं, रिटेल चेन भी खुद का ही स्टार्ट कर देंगे तो वो जो मार्जिन का प्रॉब्लम आ रहा था वो शायद खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ जाएगा. रिक्वायर्ड क्या, एक्सप्लेन वैल्यू चेन. स्ट्रेट अवे थियोरी क्वेश्चन है, डायरेक्टली पॉइंट पे जाके वैल्यू चेन को एक्सप्लेन करना है. वैल्यू चेन क्या होता है, हम लोग पूरी एक्टिविटीज को देखते हैं जो कि बेसिकली एक इनपुट में वैल्यू ऐड करती है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करती है ताकि अल्टीमेटली हम ये वैल्यू कस्टमर को डिलीवर कर सके. राइट, दैट इज वैल्यू चेन. दैट इज व्हाई द टर्म हैज द वर्ड वैल्यू इन इट. राइट, अगर उस चेन के अंदर वैल्यू नहीं ऐड हो रही है तो वो वैल्यू चेन नहीं होगी. सो बेसिकली वैल्यू चेन के अंदर वैल्यू ऐड होना जरूरी है. सो ऑल दोज एक्टिविटी विच ऐड वैल्यू टू द इनपुट while conversion of this into output, वो सारी एक्टिविटीज आप कंबाइन करो और उसको आप वैल्यू चेन बुला सकते हो. सो वैल्यू चेन के अंदर दो तरह से हम लोग बाइफिकेट करते हैं एक्टिविटीज को. वन इज द प्राइमरी एक्टिविटीज एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटीज. ऑलराइट, ये हो गया आपका वैल्यू चेन का एक्सप्लेनेशन. उसके बाद में वी हैव टू आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजी. एलडीसी ऑप्टेड टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो एलडीसी के बारे में बताया कि एज ग्रुप फ्रॉम 40 to 60 years एंड बिलोंग्स टू प्राइस सेंसिटिव इनकम ग्रुप. तो क्या करेगा, प्राइस सेंसिटिव है तो डेफिनेटली ये हो जाएगा आपका लो कॉस्ट एडवांटेज. ठीक है, तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और फिर आप उसको लिख सकते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन है, What do you mean by competitive advantage and how it can be attained? Explain. तो competitive advantage क्या होता है, डायरेक्टली एक्सप्लेन करना है. competitive advantage is basically कि हम लोग ऐसी कौन सी चीज कर रहे हैं which differentiates us from our competitor. हम लोग कुछ तो एक्स्ट्रा दे रहे होंगे so that we have this advantage over our competitors. ठीक है, so हमें कुछ तो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना है, कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करना है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर सकते. दैट इज आवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड बेसिकली इट कम्स फ्रॉम आवर कोर कॉम्पिटेंसीज. दो तरीके से अटेन किया जा सकता है, वन इज कॉस्ट लीडरशिप एंड सेकंड इज डिफरेंशिएशन. दोनों को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज उन्होंने पूछा है एक्सप्लेन करने का. ओके, डिस्कस वैल्यू चेन इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दैट इज एक्विजिशन ऑफ एलडीसी ऑन एफएफसीज कॉम्पिटिटिव एबिलिटी एंड कॉस्ट कॉम्पिटेंसी. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. हमें एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है कि अगर हम लोगों ने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या फायदा मिला होगा और क्या नुकसान हुआ होगा, हमें उसके बारे में डिस्कशन करना है. तो चलिए करते हैं. बेसिकली इफ आई हैव इंटीग्रेटेड फॉरवर्डली और मैंने एलडीसी को परचेज किया, अक्वायर किया और उसके थ्रू मैंने वैल्यू चेन के अंदर और ज़्यादा एक अपनी जगह गेन करने की कोशिश करी, तो उसकी वजह से मुझे क्या फ़ायदा हुआ होगा. वन इज in fact I should not be calling it direct but I should be calling it more direct. तो पहले जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक बनाते थे, हमें नहीं पता होता था कि अल्टीमेटली उससे क्या होके और कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है. अब हम और ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कंज्यूमर के साथ में बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा. राइट, सो वी हैव गॉट दिस कि अब हमारा रिलेशनशिप जो है और जो वैल्यू एडिशन है अपने एंड कंज्यूमर के लिए वो और ज़्यादा डायरेक्ट होता नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेशन. सेकेंड इज क्योंकि अब इंटीग्रेशन हो चुका है, हमारा वैल्यू चेन के अंदर और ज़्यादा पहुंच हो चुका है, तो प्राइस इज ऑन आवर साइड. राइट, हम लोग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग अपने मार्जिन संभाल सकते हैं.
बट एट द सेम टाइम नाउ यू हैव बेसिकली इफ यू सी डिवीजन वाइज तो आपके दो डिवीजन है, एक है फैब्रिक मैन्युफैक्चर करने वाला और फिर अल्टीमेटली है एक जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पर आपके ट्रांसफर प्राइसिंग इन्वॉल्व हो जाता है, राइट? बिकॉज एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन पे जब वो ट्रांसफर होगा इनपुट, तो ट्रांसफर प्राइस लगाना पड़ेगा। उसके अलावा पहले आप सिर्फ फैब्रिक मैन्युफैक्चर करते थे तो आपका पूरा ध्यान फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर था, अब आपका ध्यान क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आ चुका है। तो जब आपका ध्यान दो डिविजन्स की तरफ जा चुका है तो फिर आपका एक के ऊपर से ध्यान कम हो जाएगा डेफिनेटली। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब आप फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 पोजीशन पे कभी नहीं आ सकते, ठीक है? मतलब आ सकते हो डेफिनेटली, बट देयर इज अ हाई चांस कि आप उतना ध्यान नहीं दे पाओगे और आप उसको और ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो वहां से ध्यान हटने का डर है यहाँ पर इन केस ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आई कुड थिंक ऑफ। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एबिलिटी एंड कॉस्ट कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और कॉस्ट हम लोग देख सकते हैं, कॉस्ट कॉम्पिटेंसी इस तरह से देख सकते हैं। एक और चीज़ कि अब हम लोग जब क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं तो फिर हम लोग प्रोड्यूस करते जाएंगे और फैब्रिक और क्लॉथ को मिक्स करना पड़ेगा, सिंक में लाना पड़ेगा। जितनी रिक्वायरमेंट है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की उतना ही हमको फैब्रिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अदरवाइज सेल नहीं कर रहे बाहर उसको, ठीक है? सो अगर ये सिंक जो है वो टूट गया तो इसकी वजह से क्या होगा कि बफर स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा, दिस विल होल्ड स्पेस, एंड इसकी वजह से हमारा अल्टीमेटली इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बढ़ सकता है। तो हमें बहुत स्पेसिफिकली देखना होगा कि डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन हुआ जाए, राइट? अगर हम लोग प्रोड्यूस करके बफर करते जाएंगे उसको स्टॉक में तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। दिस इज अनदर पॉइंट। सो ये वाले पॉइंट्स हैं जो आप थोड़े लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें इवेल्युएट करना है पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ द क्लॉथ रिटेल चेन वस्त्रालय बाय एफएफसी। हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहली बात तो अगर यहाँ पे भी हमें डिसीजन देना होता तो आई थिंक कि हम लोग नहीं करते, बिकॉज ऑफ वन रीजन विच आई कैन थिंक ऑफ, कि लमोद डिजाइनर क्लोथिंग इज इनटू फैशन वेयर्स, और हमारा जो फैब्रिक है वो ट्रेडिशनल है नेचर का, राइट? तो सिंक नहीं होता। अगर लमोद के डिजाइनर्स बैठे हैं और उनको इससे रिलेटेड काम करना है, ट्रेडिशनल फैब्रिक को लेकर डिजाइनर क्लॉथ बनाना है, हाउ डिफिकल्ट इज दैट गोइंग टू बी, राइट? तो प्रोबेबली ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है। Then we have to evaluate the possible acquisition of cloth retail chain वस्त्रालय by FFC. Definitely it is going to help, क्योंकि retail chain के ऊपर आपका कमांड आ जाएगा तो आप खुद के स्टोर्स के हिसाब से सेल कर सकते हो। बट अगेन दिस वुड क्रिएट अ सिनेरियो जहाँ पर आपका वापस स्टॉक बफर हो सकता है और होल्डिंग कॉस्ट बढ़ सकता है। सेम थिंग, डिजाइनर्स जो हैं वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके जो स्टॉक है वो सेल होगा या नहीं होगा, आपका ध्यान वापस से और बटने वाला है। अब आपका ध्यान रिटेल चेन में भी चले जाएगा, विच इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि रिटेल चेन्स तो बहुत आपका डाइवर्स हो गया ना, बहुत एक्सपैंड हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक जगह हो रही थी, बट रिटेल यानी कि सेल्स करना है, तो सेल करने के लिए आपको अलग अलग जगह पर आपके रिटेल आउटलेट्स ओपन करने पड़ेंगे, राइट? ऑलरेडी होंगे वस्त्रालय के, बट और करने पड़ेंगे, राइट? तो उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा आप डेफिनेटली अपने एंड कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस को समझ पाओगे अब, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा आपके एंड कंज्यूमर्स के साथ में, तो आप उनकी टेस्ट, उनकी प्रेफरेंस को समझ पाओगे एंड यू कैन यूज दैट। उसके अलावा शायद आप अपने प्राइस को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर पाओगे। जो मार्जिन का जो पॉइंट है यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि रिटेलर्स एलिमिनेट हो जाएंगे तो उससे हमारा मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा, दैट पॉइंट माइट कम आउट टू बी ट्रू, बट डेफिनेटली बिकॉज यू आर नाउ गोइंग टू हैंडल द रिटेल चेन्स तो आपका कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। ओके, सो यू माइट हैव टू इनकर एडिशनल कॉस्ट टू हैंडल दिस रिटेल आउटलेट्स। ये सारी चीजें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर द एक्विजिशन ऑफ वस्त्रालय चेन। ऑलराइट, सो लेट्स गो रीड द आंसर। सबसे पहले वैल्यू चेन वो एक्टिविटीज बताता है जो कि वैल्यू ऐड करती है टू द इनपुट बिफोर इट बिकम्स आउटपुट। वैल्यू चेन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज असेसिंग एंड एक्सप्लेनिंग करंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज while identifying cost drivers,
कैसे स्प्लिट डाउन कर सकते हैं प्राइमरी एंड सपोर्ट। ओके, उसके बाद में सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, या तो डिफरेंशिएशन करता है या फिर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे जाके क्रिएट करता है वैल्यू को। स्ट्रैटेजी क्या यूज कर रहे हैं ये लोग, दे आर टारगेटिंग पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 60 years एंड दे आर प्राइस सेंसिटिव। तो हम लोग कॉस्ट लीडरशिप पे फोकस कर रहे हैं। ऑलराइट, ये इजी पार्ट्स हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला जो पॉइंट था उसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में लिखेंगे कि हम लोगों को ज़्यादा वैल्यू जनरेट करना है देन आर कॉम्पिटिटर्स। 3 तरीके हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, तीसरा आपको भूलना नहीं है फोकस स्ट्रैटेजी। आपको ये लिखना है हमेशा कि आपको फोकस स्ट्रैटेजी के अंदर ये डिटरमाइन करना है कि पता यू आर गोइंग फॉर कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। ठीक है, कमिंग टू फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की हमारे वैल्यू चेन पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में लामोद को परचेज करते हैं। हमने किया तो उससे क्या इफेक्ट हुआ, सो डेफिनेटली इट इंक्रीज द प्रॉफिट। हमारा इफेक्टिव कंट्रोल बढ़ गया मार्केट के ऊपर और प्राइसिंग के ऊपर, और ब्रांड बिल्डिंग अब बेटर हो सकता है क्योंकि हम अपने टारगेट ग्रुप को रीच कर सकते हैं और ज़्यादा डायरेक्ट तरीके से, वो डायरेक्ट कनेक्शन बिल्डअप हो चुका है। और मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था कि हम लोग वैल्यू चेन के ऊपर कंट्रोल मिले हमें और प्रॉफिट हम लोग इंक्रीज कर पाए। बट अब क्या करना होगा कि सबसे पहले तो मोर कॉम्प्लेक्स हो गया वैल्यू सिस्टम, क्योंकि 2 सिस्टम एक के अंदर मर्ज हो गए, एक वैल्यू चेन के अंदर मर्ज हो गए। उसके अलावा जो एलडीसी है लामोद, वो तो ट्राई कर रहा है कि प्राइस सेंसिटिव ग्रुप को टारगेट करे एंड सेंसिबल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम लोग जब परचेज करने जाते हैं तो हो सकता है देयर इज तो होता ही है कि देयर इज वन पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स जो कि प्राइस सेंसिटिव होते हैं वाइल परचेजिंग क्लोथ्स, एंड उसमें उन लोगों को केटर करने के लिए हमें प्राइस को कम रखना होता है। तो हमें डेफिनेटली अपने कॉस्ट को मैनेज करना होगा। बट डिजाइनिंग के लिए ये बात ठीक है, अगर कोई फैब्रिक मैन्युफैक्चर कर रहा है तो दिस माइट नॉट बी द करेक्ट अप्रोच। मैं फैब्रिक मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो ये नहीं सोच के करूंगा कि प्राइस सेंसिटिव इनकम ग्रुप को केटर करना है मुझे। ठीक है, मैं इस अप्रोच से करूंगा कि अल्टीमेटली जो यूज करने वाला है, यानी कि मेरा क्लॉथ मैन्युफैक्चरर जो यूज करने वाला है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करूंगा। ओके, इफेक्ट क्या हो सकता है, 2 प्रोडक्शन लाइन अब ऑपरेट करने पड़ेंगे तो ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाएगा, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। कैपेसिटी का अगर मिसमैच हुआ तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ईदर वेयर हाउसिंग और आइडल कैपेसिटी विच इज योर हैंडलिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, तो वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैरिंग कॉस्ट ये इससे रिलेटेड ही है। उसके बाद में हम लोग अदर फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स से compete नहीं कर पाएंगे बिकॉज अब हमारा फोकस जो है वो डाइवर्सिफाई हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं है, अब दोनों चीज़ पर फोकस है। तो हम लोग नंबर 1 पर नहीं पहुंच पाएंगे जैसे हमने डिस्कस किया। एंड डिज़ाइन ऑफ फैब्रिक जो है वो ट्रेडिशनल वेयर के लिए है, एलडीसी का एक्सपर्टीज़ है फैशन वेयर में, तो डिज़ाइनर के पास में फ्रीडम नहीं रहेगा। ये सारे पॉइंट वही है जो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद में हम लोग आते हैं कि क्या हमें पॉसिबली एक्वायर करना चाहिए वस्त्रालय को। तो चलिए बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट्स है कि फुल कंट्रोल आ जाएगा ओवर द प्रोडक्शन, प्राइसिंग, मार्केटिंग पे भी आ जाएगा इनफैक्ट। उसके अलावा कस्टमर स्पेसिफिकेशन समझ पाएंगे हम लोग तो बेटर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। उसके अलावा वी विल हैव एक्सक्लूसिव रिटेल चेन, तो हम लोग कंपटीशन भी कम कर सकते हैं। अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोग पहले जिस तरह से सेल करते थे, सो एक रिटेल आउटलेट है, दिस इज ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3। तो आपका अगर ब्रांड 1 है, आपके साथ में खरीदने के लिए अगर लोग वहां पे जाते हैं तो आपके अलावा वो ब्रांड 2 भी खरीद सकते हैं, ब्रांड 3 भी खरीद सकते हैं। और ये जो रिटेल आउटलेट है वो तो तीनों दिखाएगा ना, तो कंपटीशन बढ़ गया। बट जब हमारी खुद की रिटेल आउटलेट है तो हम लोग क्या दिखाएंगे, ओनली एंड ओनली ब्रांड 1, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं जब हमारा खुद का रिटेल चेन होता है तो। ओके, लेट्स गेट बैक टू द ड्रॉबैक्स। सबसे पहले एक और एरिया खुल जाएगा तो हमारा ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा डेफिनेटली। उसके अलावा हमारा ध्यान यहाँ से डाइवर्सिफाई हो जाएगा और ज़्यादा। देन ट्रेडिशनल क्लोथिंग के लिए मैन्युफैक्चर करता है फैब्रिक,
बट ज़रूरी नहीं है कि ये अट्रैक्ट करे द नंबर ऑफ कस्टमर्स. हम लोग ट्रेडिशनल क्लोथिंग मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट. हम लोग फैब्रिक सिर्फ उसके लिए करते हैं. और जो लमोद है वो तो डिज़ाइनर फैशन फैब्रिक बनाता है, फैशन क्लोथिंग बनाता है इनफैक्ट, सॉरी. तो अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो हो सकता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स को अट्रैक्ट ना करे. एंड उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है कि अगर हमारा रिटेल आउटलेट नहीं चल रहा है तो हम लोग भी उसी मॉडल पे आ जाएं. या फिर हो सकता है कि अगर आप ब्रांड वन खरीदते हो तो आपको कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाए, तो अदर मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स आपको शायद देखने को और सेल करने को पड़ सकते हैं, राइट. सो ये सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. एंड दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व.